नामा माया मोहिया कह त्रिलोचन मीत काहे छिपो छाइलै राम न लाहो जीत। नामा कह त्रिलोचना मुख ते राम समाल हाथ पाँव कर काम सब जीत निरंजन नाल। महला पंजवा। कबीरा हमरा को नहीं हम किसहूँ के नाहे जिन एह रचन रचाया तिस ही माहे समाहि। जिन एह रचन रचाया तिस ही माहि समाहि। जुगो जुगो डाल चवर छतर तक दे मालक हाजरा हजूर सर्व कला भरपूर सर्वे कायनात प्रतिपालक गुरता गति ते सुभायमान ज्ञान दे गति भंडार सब दुखन को हरता सब सुखन के दाते धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जीओ की पावन पवित्र हजूरी अंदर बैठ करके शब्द कीर्तन का रस आनंद माणिया है। आओ हजूर की बाणी की विचार नाल मन बिरतियां एकाग्र करिए। गुरु बख्शी फतेह नाल सांझ पाओ आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। भगत बाणी की लड़ीवार विचार रोजाना चल रही है। भगत कबीर साहब जिन्हां दे श्लोकां दी विचार असीं रोजाना कर रहे हाँ। विचार अधीन जिन्हां श्लोकां दा पाठ असीं हुणे साझा कीता है। ये श्लोक भगत कबीर साहब जीओ के इस सिरलेख के अधीन हैं। इस सिरलेख के अधीन दो श्लोक जिन्हां विच भगत नामदेव ते भगत त्रिलोचन जी का वार्तालाप विचार चर्चा एक विषय को लेकर के दर्शाया गया है। उदाहरण तौर पर साखीकार इस तरह विचार आरंभ करते हैं, गल सामने रखते हैं। कह लगे भी भगत त्रिलोचन जी ते भगत नामदेव जी इन्हां दा मेल मिलाप एक दूजे नाल अक्सर होंदा रहिंदा है। धर्म के विषय ते कई प्रकार दीयां चर्चा विचार गोष्ठियां ये दोवें मित्र आपस में करते रहते हैं। ते कहन लगे भी एक बार भगत नामदेव जी ते भगत त्रिलोचन जी का मेल होया।
ਤੇ ਭਗਤ ਤਰਲੋਚਨ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਨਾਮਦੇਵ, ਇਹ ਮਿੱਤਰ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ, ਇੱਥੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਕਰਕੇ ਜਾਣਨ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ, ਭਗਤ ਕਰਕੇ ਜਾਣਨ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ, ਤੇ ਆਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਬੜੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਪਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਖਚਤ ਹੋਏ ਪਏ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ, ਚੌਂਕੜਾ ਵੱਜਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਬੋਲੀ ਜਾਵੇ, ਅੰਦਰ ਬੋਲੀ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਭਗਤੀ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ, ਢੰਗ, ਤਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਤੋ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਗਤ ਤਰਲੋਚਨ ਜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਭਗਤ ਤਰਲੋਚਨ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਗੱਲ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ, ਆਪਣਾ ਇਹ ਸ਼ੰਕਾ ਨਿਰਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਇਹ ਸ਼ੰਕਾ ਜੋ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਆਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਾਮਾ ਮਾਇਆ ਮੋਹਿਆ ਕਹਿ ਤਿਲੋਚਨ ਮੀਤ। ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਨਾਮਦੇਵ ਤੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਗੁਆਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਕਾਹੇ ਛੀਪੋ ਛਾਇ ਲੈ ਰਾਮ ਨਾ ਲਾਵੋ ਚੀਤ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਐਵੇਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਚਿੱਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦੇ, ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦੇ, ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਬਥੇਰੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਨਾਮਾ ਕਹਿ ਤਿਲੋਚਨਾ ਮੁਖ ਤੇ ਰਾਮ ਸਮਾਲ। ਨਾਮਾ ਕਹਿ, ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਤਿਲੋਚਨਾ, ਇਹ ਤਿਲੋਚਨ ਮਿੱਤਰ ਜੀ, ਮੁਖ ਤੇ ਰਾਮ ਸੰਭਾਲ, ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਚੇਤੇ ਕਰ ਤੇ ਹਾਥ ਪਾਉ ਕਰ ਕਾਮ ਸਭ ਚੀਤ ਨਿਰੰਜਨ ਨਾਲ। ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰ ਕਰ, ਪਰ ਚਿੱਤ ਹਿਰਦਾ ਇਹ ਨਿਰੰਜਨ ਮਾਇਆ ਦੀ ਕਾਲਕ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਪ੍ਰਭੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣਗੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਸਮਾਧੀਆਂ ਲਗਾ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ, ਕੋਈ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀ ਚੋਟੀ ਤੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਗੁਫਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੜ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਭਗਤੀ ਹੁੰਦੀ। ਕਹਿਣਗੇ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਥ ਪਾਉ ਕਰ ਕਾਮ ਸਭ ਚੀਤ ਨਿਰੰਜਨ ਨਾਲ, ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਰ ਕਰ ਤੇ ਹਿਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇ। ਬਹੁਤਾਤ ਵਾਰੀ ਵੇਖੀਦਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਤਨ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਮਨ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਥੇਰੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਾਜ਼ੀ ਤੇ ਮੌਲਵੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਮਾਜ਼ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਮਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਆਖਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਤੇ ਮੈਂ ਨਮਾਜ਼ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਤਨ ਕਰਕੇ, ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਪਰ ਮਨ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
तो तुसीं दोवें हाज़र नहीं हो, इस करके मैं तुहाडे नाल नमाज पता नहीं कर सकिया। तो दोवें जने शर्मिंदा हुंदे ने। साडे जीवन की भी हालत बहुतात रूप इस तरह है, जिथे तन रुकिया होया है उत्थे मन नहीं है। जे तन गुरु की हजूरी विच बैठा है, मन घर के ख्यालों में गुआचिया होया, कामां कारां विच निकलिया होया है। तो तां करके भगत जी ने यह विचार साडे नाल इस गल नूं साझा कीता कि हाथ पाउं कर काम सब चीज निरंजन नाल, किरतकार करदिया होया हत्थां पैरां नाल किरतकार काम कर करदिया हिरदा ये रब की बंदगी विच सिमरन विच लीन करना है। बंदगी का ढंग ये है। जे कोई समाधियां लगाउण की गल करदा है, चौंकड़ा मार के बैठण की गल करदा है, तो दशमेश मालिक पातशाह जी सुचेत करते हुए आखरे ने, कहने के कहा भयो जो दो लोचन मूंद कै बैठ रहे हो बक ध्यान लगाओ। ये की होया भी दोवें अखां बंद कर लियां, बगली वांग समाधि लगा ली। बगला की करदा है, वो पानी के किनारे ते समाधि लगा लैंदा है, कहन लगे भी इकलाते भी खलो जाता है, अखां बंद कर लैंदा है। ते छोटियां मच्छियां नूं डडूआं नूं भुलेखा पै जाता भी बगला जिहड़ा भी ते बंदगी पिया करदा है, सिमरन करदा है। पर कहन लगे ज्यों ही उसके नेड़े आउंदे ने वो इक्को दम झपट मार करके खा जाता है। तो कहा भयो जो दो लोचन मूंद कै बैठ रहे हो बक ध्यान लगाओ। बगले वांग ध्यान लगाउण दा समाधि लाउण दा कोई फायदा नहीं है। जे मन नहीं जुड़िया ते तन इत्थे टिकाउण दा कोई अर्थ लाभ नहीं होगा। तो भगत जी ने अज इस विचार में अज इन्हां दो श्लोकों में जीवन जात बख्शिश कर दी। कहने लगे भी सब तो पहला तो इस गल का भुलेखा अपने अंदरों दूर करो भी कि चौंकड़ी मार के भगती हो सकती है। नहीं, ये मन नूं टिकाउण दा एक साधन ढंग तरीका अभ्यास शुरुआत तो हो सकती है। नितनेम कर लगिया चौंकड़ा मार करके बाणी पढ़िए, विचार सुन लगिया, कीर्तन सुन लगिया, शरीर की सावधानता बड़ी जरूरी है, होना चाहिए। पर कहन लगे हिरदा मन भी अंदरों उस शब्द नूं सुने, उस विचार नूं सुने ते मन्ने ग्रहण करे, फिर यह हाजरी प्रवान होती है, फिर तन की हाजरी की प्रवान होगी। तो हाथ पांव कर काम सब चीत निरंजन नाल हिरदा मालिक की बंदगी नाल जोड़ भावें अपनी किरतकार करता रहे। अगे पंचम पातशाह जी का नाल श्लोक है, महला पंजवा। कबीरा हमरा को नहीं, हम किसहू के नाहे। कहने के कबीर, इस संसार अंदर झात मार करके वेख ते सदा का साथी साडा कोई नहीं है। किते किसी का भरा तुरिया जा रहा है, मौत हो जाती है, कोई होर रिश्तेदारों की मौत हो जाती है, जिन्होंने कोई सका संबंधी असीं समझते हैं, पदार्थ खत्म हो जाते हैं। बाबा फरीद साहब जी ने इस गल बड़ा बखूबी तौर पर आख्या है। बाबा फरीद साहब जी तो आखते ने, फरीदा कित्थे तैंडे मापिया जिन्हीं तू जने हुए, जिन्होंने तेनों जन्म दिता है, तेरे माता पिता वारी आपो अपनी दोवें चले गए ने, ते तू इस गल नूं दोवां गल्लां नूं अपनी अखीं देखिया, ते फिर इस अखां नाल सच्चाई नूं वेख करके तू अजे ना बतीन हो, तैनूं अजे भी यकीन नहीं होया, तू इत्थे किवें रह सकदा है। तो कबीरा हमरा को नहीं, हम किसहू के ना है, ना तो असीं किसी दे सदा वास्ते साथी बन सकते हैं, ना तो साडा कोई साथी बनता है। पक्के तौर पर टिकाना इस संसार अंदर किसी का भी नहीं है। तो फिर गुरु साहब जी अगे कृपा करते आखते ने, जिन यह रचन रचाया तिसी माहे समाहे। पर कहने की जिसने रचना रची है, संसार पैदा किया है, जिसने हर एक जीव को जिंद जान दी है, रोजी दी है, उस मालिक प्रभु की सिफ सलाह कर करके उस विच समा जाना, यह है जीवन की सफलता।
अपना जीवन इस तरह का बना लेना कि मालिक परमात्मा के घर में कबूल हो जाना। इत्थे संसार की दुनिया की गल करिए तो लोगों की नज़रों में कबूल होना ये बड़ा सौखा है, पर कहन लगे भी सच तो उदों पता लगेगा जो मालिक के घर में असीं पहुँचते हैं भी कोई किन्ने को पानी विच है। बाणी में सतगुरु गुरु नानक साहब जी रोजाना आखते हैं कच पकाई उथ पाई, इत्थे पैमाना कोई नहीं है। इत्थे आम तौर पर लोग जिधर का बहाव है हवा है उधर नूं तुर पैंदे ने, मूँह उधर नूं कर लेंदे ने। पर सच की है, गुरु नानक साहब जी आखते ने कच पकाई उथे पाए नानक गया जापै जाए। ये तो उत्थे पता लगना भी की हिसाब किताब साडा। दुनिया की नज़र में हो सकता है बथेरे असीं करदे पा लईए, गुनाह कर लईए, पर निरंकार दे घर विचों कुछ भी छुपाया नहीं जा सकता। इस गल नूं चेते रखना है। तो तां करके इस श्लोक विच भी जो मेहर जीवन जाच बख्शिश की गई है कि कबीरा हमरा को नहीं हम किस्मों के नाहे, सदा दा को पक्का साथी नहीं है। जिन ये रचन रचाया तिस ही माहे समाए। जिन्हें रचना रची है उस मालिक की बंदगी करनी चाहिए, उसदे विच समा जाना चाहिए। तो विचार अधीन इन्हां 3 श्लोकों के अंदर जो जीवन जाच बख्शिश की गई है, भगत नामदेव ते भगत त्रिलोचन जी की विचार, भगत त्रिलोचन जी भगत नामदेव जी का वार्तालाप कि रब की बंदगी सिमरन करन लगियां जरूरी नहीं है कि लोक विखावा किया जाए। असल में किरत करदियां भी उस परमात्मा का नाम जपया जा सकता है, अपनी किरत विच ईमानदारी वर्त करके। किसी पराए का हक ना खादा जाए, किसी नाल ठगी ना की जाए, किसी निमाणे निताने कमजोर नाल वधीकी ना की जाए। सच ते सदा पहरा दिता जाए, झूठ नूं अपने जीवन विचों पासे किया जाए जो इधरों उधरों सुन जाइदा है। तो सच उत्ते टिकिया होया हर एक व्यक्ति वो हिरदे नाल रब की बंदगी करता है, सिमरन करता है, वो को लोक विखावा नहीं है। तो दूजे श्लोक में भगत जी ने कृपा करके समझाया है कि असल अंदर सदा का साथी केवल ते केवल एक अकाल पुरख वाहिगुरु मालिक परमात्मा है। तो जेड़े उस नूं साथी मान करके रबी बंदगी में जुड़ते हैं, सिमरन में जुड़ते हैं, वो अपना ये लोक सुखिया ते परलोक सुहेला बना लेंदे हैं। समय की समाप्ति है, होइयां भुलां दी खीमा फतेह नाल सांझ पावो जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।